बॉर्डर से आज एक दुखद समाचार सामने आया। निहंग सिखों द्वारा किसान आंदोलन में एक युवक की जघन्य हत्या का मामला सामने आया है। हत्या के बाद युवक के शव को लटकाया गया और हत्या से पहले उसके हाथ को काटा गया। आरोप गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का लगा। लेकिन क्या ऐसी जघन्य हत्या को किसी भी तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है? उसी सवाल को जान लेकर हम किसान आंदोलन के बीच आए हैं टिकरी बॉर्डर पर। उससे पहले मैं आपको किसान आंदोलन की तस्वीर दिखा देता हूं। लगातार करीबन 11 महीने से किसान आंदोलन जारी है और आप इस वक्त ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बहादुरगढ़ के पास पकौड़ा चौक है, जहां भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की स्टेज लगती है और टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन की मुख्य स्टेज लगी है। टिकरी बॉर्डर से अलग है ये स्टेज। यहाँ भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा से जुड़े हुए किसान इस आंदोलन में सम्मिलित हैं। किसान लगातार आंदोलन में सक्रिय भागीदारी भी निभाते आए हैं। महिलाएं भी इस आंदोलन का हिस्सा रही है। लेकिन आज सवाल, सबसे अहम सवाल ये है और किसान नेताओं के सामने ये सवाल है कि क्या किसान आंदोलन में किसी की इतनी बेरहमी से हत्या की जा सकती है? उसी सवाल को लेकर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के प्रधान के पास हम आए थे, लेकिन जोगेंद्र सिंह उग्राहा तो हमें नहीं मिले। कार्यकारी प्रधान हैं जसविंदर सिंह जी, सीधा उनसे बात करते हैं। जसविंदर जी, सिंधु बॉर्डर पर जो जघन्य घटनाक्रम हुआ, जो जघन्य हत्या हुई, उसके संदर्भ में आप लोगों का क्या मत है? क्या किसान आंदोलन अब करवट ले रहा है? देखो, थोड़ा समा कुछ घंटे पहला सानू पता लग्या सी कि ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਅਬਦੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਇਹ ਹਜੇ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਂ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਮਨ ਦਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਕੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10-11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤਿੜਕੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ वो कुछ समय बाद पड़ताल होने तो बाद सामने आ जाएंगी। जसविंदर जी, क्या कोई भी कारण रहा हो, क्या इस तरीके की किलिंग को जस्टिफाई किया जा सकता है? तालिबानी तरीका है, तालिबान में सुनते थे कि हाथ काट देते हैं, आँख फोड़ देते हैं, तो क्या किसी भी तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है? असल ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤੜ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਅੰਦੋਲਨ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ है कि जो निर्णय लेगा वो पूरा विचार के ठोक के लेगा, क्योंकि क्योंकि कोई भी आंदोलन है अगर वो शांति प्रिय रहता है तो अपने मुकाम तक चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन लंबा खिंचता जाता है उसके अंदर कुछ घटनाएं घटती हैं, लेकिन इस तरीके की जब घटनाएं घटती हैं तो वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकती। हम लखीमपुर में जो हुआ उसकी भी निंदा करते हैं और जो सिंधु बॉर्डर पर हुआ उसकी भी निंदा करते हैं, लेकिन क्या इस तरह की घटनाओं में किसान नेताओं की तरफ से बार बार ये कह दिया जाता है, अपना बचाव करने के लिए कहें या कुछ भी कहे, ये कह दिया जाता है कि सरकार आंदोलन को तोड़ना चाहती है, लेकिन क्या किसान नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे लोगों को पहचान की जाए जो इस आंदोलन में कहीं ना कहीं किसान नेताओं के लिए मुसीबत बन सकती है? देखो बिल्कुल ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਾਖੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ अब किसान नेताओं के हाथ से निकल रहा है, आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, किसान नेता के हाथ से नहीं निकलेगा आंदोलन। पर जे कोई व्यक्ति रात को, आंदोलनकारी तो बॉर्डर पे बैठे हैं, कोई व्यक्ति रात को आके घटना को अंजाम दे देगा, क्या पता लगेगा दूर कौन लोग हैं, क्या होता। क्यों पहले इत्थे टिक्करी पे एक घटना घटी थी कि एक गवांडी पिंड का नौजवान था, वो आया, उसने पेट्रोल पंप से तेल लिया, अपने पे पा के सुसाइड कर लिया। असी तो उस घटना को निंदा करते हैं कि एक मनुष्य ज़िंदगी क्यों चली गई, पर उसके बाद भी सरकार ने तो हमारे पे निशाना लाना सोचा था। उसकी पड़ताल के बाद हमने सारी चीज़ लोगों के सामने लेके आए कि हमारा तो कसूर नहीं था, वो तो हमारे साथ आया ही नहीं। वो तो व्यक्ति अपने कोई परिवार की समस्या हो सकती है, उसकी निजी जिंदगी में कोई आई समस्या हो सकती है, जिस करके उसको ऐसी घटना बल तुरना पड़ा। हम तो वो भी चाहते थे कि ऐसे मनुष्य ज़िंदगी को जाना ना चाहिए। जसविंदर जी, जिस तरीके से अब आंदोलन लगातार लंबा होता जा रहा है, साल भी हो जाएगा अगले महीने, उस तरीके से देखा जाए तो जो लोगों का जो सब्र है वो टूटता हुआ सा नज़र नहीं आ रहा, चाहे वो राजनीतिक रूप से देखें। अब जब नेताओं की रैलियाँ होती हैं, नेता कहीं आते हैं, भाजपा और जज्बा की बात करें हरियाणा में, तो उनका घेराव हिंसक रूप लेता है, और उसी की एक परिणति लखीमपुर में हुई। चाहे उसके लिए जो जिम्मेदार भाजपा के जो मंत्री थे उनकी अभी तक गिरफ्तारी या उनका अभी तक सरकार से नहीं हटाए गए, लेकिन उनका बेटा गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन इस घटना में जिन निहंग सिखों को जो वीडियो में सामने आए हैं, क्या उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? देखो, पहली बात तो ये है, इस घटना का असली जिम्मेवार कौन है, इसके पीछे साजिश को रचने वाला कौन है, ये बात का निर्णय लेना जरूरी है। दूसरी बात, कानून अपना काम करेगा, क्योंकि उसकी जो बॉडी है उसको पुलिस ने हाथ में ले लिया। उसके बाद जो हमारे संयुक्त मोर्चे के लीडर हैं, आगू हैं, वो पूरी विचार के पड़ताल के जो फैसला करेंगे, जो विचार करेंगे, हम उस पर पूरा ध्यान देंगे सभी लोग, ऐसी बात नहीं है। आंदोलन और सरकार में बात आती है हर बार एक बार नैतिक जिम्मेदारी की। आप लोग भी कहते हैं सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो आंदोलनकारी है उनके भी मानव अधिकारों की रक्षा की जाए। तो क्या अब किसान नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह की घटना की जिम्मेदारी लें और उन पर कार्रवाई करें, या फिर इस आंदोलन को नहीं? देखो, किसान नेता तो पहले दिन से ये कहते आए हैं भी जो लोग हमारे असूलों की पालना नहीं करने वाले वो हमारे नहीं हो सकते, वो तो पहले कहते आ रहे हैं। ये आज के बाद भी इस कल को साफ करेंगे भी ये कैसे घटी, कौन जिम्मेवार है, कौन लोग। हम तो जो हमारे आंदोलन में लोग हमारा कहना नहीं मानते, हिंसक होने वाले लोग हैं, जो उनको बेनती करते हैं कि भाई वहाँ पे चले जाना, आपके घर को चला जाना, हमारे आंदोलन को ना खराब करना, क्योंकि हम तो आंदोलन को शिखर पे ले जाना चाहते हैं। हम तो लोगों को बेनती करते हैं कि शांतमय रहना चाहिए, शांतमय रहते हैं। हम तो अपने पिंडे पे जबर चलते हैं। लखीमपुर वाली घटना तो बाद भी तुमने देखा कि हम तो शांतमय आंदोलन करके आ रहे थे,
बाद में सरकार ने हमारे पे गाड़ियाँ चढ़ाइयाँ, उनके बेटे ने हत्या कर दी साढ़े किसानों की। उसके बाद उसका मकसद सरकार का यही है कि आंदोलन को भड़काना, उसको हिंसक बनाना। हमारा तो मकसद कहाँ पे भी नहीं सामने आया। हम एक थामे थोड़ी बैठे हैं, दो थामे थोड़ी बैठे हैं, 45-50 जगहों में तो हमारा बीकेयू उगराहा का संगठन पंजाब में बैठा है। दूसरी पंजाब में 113 थामा में ते आंदोलन चल रहा है कुल, ते टिकरी बॉर्डर पे चल रहा है। हम तो इतनी जगह पर बैठे हैं, किते भी ऐसा कोई बात समझ में नहीं आ रही। पर जो सरकारें होती हैं, पहले भी हम नज़र मारते हैं इतिहास में, सरकारों का काम होता है लोगों को हिंसक बनाना, उनको उकसाना। क्यों सरकार के मंत्री बीजेपी के कितने बयान ऐसे दे के हमें करनाल। जहाँ तक बात सरकार की है, करनाल की घटना की बात करें, लखीमपुर की बात करें, सरकार ने तो कोशिश की है कि इस आंदोलन को लंबा खींचने की, तभी तो जो बातचीत रुकी थी वो बातचीत अब तक शुरू नहीं हो पाई। और जब आंदोलन लंबा खींचता है तो कुछ लोग होते हैं जो सब्र के साथ बैठे रहते हैं, कुछ लोगों का सब्र जवाब दे जाता है। तो घटना की जिम्मेदारी जहाँ किसान नेताओं को लेनी चाहिए, वहीं सरकार भी जिम्मेदार तो है। सरकार जिम्मेदार इसलिए कि इन लोगों से, इन किसानों से आखिर बातचीत क्यों नहीं की जा रही, क्यों बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकाला जा रहा। किसान तो अपनी तरफ से सरकार को बातचीत का न्योता दे चुके हैं, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि एक कॉल की दूरी पर है, लेकिन सरकार की वो कॉल किसानों तक नहीं पहुंची है। अब वो कॉल आ जानी चाहिए, ताकि ना तो लखीमपुर की घटना हो, ना करनाल की घटना हो, और ना ही सिंधु बॉर्डर पर जो हुआ ना वो घटना घटे। आज विजयदशमी का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने जब अगले आंदोलन की रूपरेखा तय की थी, तो आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। उसके बारे में भी जान लेते हैं। आज विजयदशमी पर आप लोगों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था, वो आगे क्या किस तरह? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾੜਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। देखिए, इंसानों को तो भले ही धर्म ने बांट दिया हो, लेकिन ना हवाओं को धर्म से बांट पाए, ना पानी को धर्म से बांट पाए, ना ज़मीन का कोई धर्म है। खेती किसानी को बचाने के लिए आंदोलन चला था और आज भी उसी मकसद के साथ बहुत सारे किसान यहाँ आंदोलन स्थल पर डटे हुए हैं। लेकिन ना तो हम लखीमपुर की घटना का समर्थन करते हैं, लखीमपुर की घटना जो हुई उसकी भी बहुत निंदा करते हैं। वो घटना भी नहीं होनी चाहिए थी, और सिंधु बॉर्डर पर जो हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर। रावण बहुत चंगा सी।